All right, good afternoon, everyone. I know you must be having a lot of questions. I can already see some people have raised their hands, but give me some time, at least initial 15 minutes. First, I'll take you through the company, I'll take you through the 60-day program, how we are going to start, and then end of the session, we are definitely going to have the question and answer rounds. Okay, so hold on for a few more minutes. Now, first of all, let me give you some more information. See, here you are going to learn English in the most easiest and most simplest way, okay, and also in the most effective way you would ever imagine. I mean, everybody says after learning from our academy, they say that English is actually such a piece of cake, and it was always like we always felt that it was very difficult. But here you will feel, you will have this experience. Now, okay, one more thing. This is the session which we are conducting for, and you will start learning from basics to advanced. Okay, those who are looking for the advanced sessions, they can just give me a call directly on the either the number which is shown on the screen, or on the other number which I use for sending the messages. Okay, so this entire course is designed in such a way that even children can learn, okay, without any difficulty or any confusion, irrespective of what background you have come from. Okay, even if you are from Hindi medium, Marathi medium, or any other medium, semi English medium, or even CBSE medium, we do have students from different mediums. Everybody will learn easily. Okay, and no matter what your schooling was done, because here at SS Academy, during this 60-day journey, you will achieve fluency, confidence, and powerful communication without any doubt. That is my guarantee. Okay, now, first of all, I would like to request all of you to maintain the class decorum. There are certain things which everybody need to follow. The link will remain the same, okay, for the next one second. Yeah, whenever you are joining, you can use the same link is not going to change. Anyways, I'll be sharing the link again during the before the session. Timing will also be same, 3 to 4 p.m. It will be 1 hour session every day. Daily assignments will be given. This is really important because you need to practice every day after the session. We will conduct weekly test. Our classes are generally from Monday to Friday, okay, out of which Monday to Thursday whatever we learn, Friday will be the exam session. Every week we conduct this exam, and this weekly test is really important, and this plays a very important crucial role, because due to the weekly test you will understand, it is like a self analysis. Once you, for example, if you're not practicing on a daily basis, sometimes you feel like, oh, it's so easy, I can do it, I don't need practice. The weekly exams will show the mirror. I mean, this is like an analysis. You will understand, अच्छा मुझे और मेहनत करनी है ना. So this is like self analysis. Maintain, yeah, very important. I'll request everybody to maintain the class decorum. ठीक है, because I know the sessions are free, so most of the time those who don't even want to learn but they are also participating, and then sometimes we don't entertain unnecessary questions, genuine questions, and okay, you should not be disturbing others also. That's the reason we have created this VIP group, because of the bad experiences in the past. Groups बनाते हैं तो we have seen this in the past, लोग एक दूसरे को मैसेज करना शुरू कर देते हैं, and the girls they especially they complain that unnecessary messages आ रहे हैं बाकी लोगों के. That's the reason we, to maintain the class decorum and maintain this, we have created this community where you are not able to see other participants. आपको बाकी लोगों के numbers नहीं दिखाई देते, and this is the main reason. Now, if you have any question, like I can see some of you have already raised hand. कोई question है, genuine question है तो definitely you can raise your hand. But at the end of the session, I'm going to take all your doubts. For the time being, we'll continue with this one. Now, most importantly, we say English is your superpower. Why I call English as your superpower? Because it not only gives you confidence, it's really important in most of your professional career.
It's not about professional career, but English will give you confidence. It will give you ahead. You will be ahead of most of your colleagues in the office if you know proper English. इसकी एक और वजह ये भी है, see most of the time even if you have done a lot of degrees, okay, for example even if you have done, one second, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी MBA की डिग्री है, वट एवर डिग्री यू हैव डन, बट द डिफरेंस बिटवीन नोइंग इंग्लिश, ठीक है, एंड हैविंग दिस डिग्रीज का क्या है, अनलेस यू शो योर सर्टिफिकेट, अनलेस यू शो योर डिग्री, nobody will accept that, I mean people will not accept that you are a qualified person. For example, if you appear for an interview, क्या होता है, if you appear for an interview, like if you are saying that you are an MBA degree holder, you have to prove it with the help of your certificate. But if you know English, nobody will ask, okay. If you are speaking English fluently, people will assume क्या मतलब है, वो मान लेंगे, मान लेना, अज्यूम कर लेने का क्या मतलब है, मान लेना. दे विल अज्यूम दैट यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, नो बडी विल क्वेश्चन ऑन योर क्वालिफिकेशन, कोई पूछेगा ही नहीं, बिकॉज यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दे विल अज्यूम दैट यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन. दैट्स द रीज़न आई से इंग्लिश इज़ योर सुपर पावर. You know what is English, and then English क्या है, and what are the benefits. You have multiple benefits, no doubt. आत्मविश्वास देता है, ठीक है, it gives you confidence, you have lot of career options, it's like international language, obviously for sorry, obviously for शिक्षा, for the studies, है ना. It is like you have multiple benefits of knowing English, that is beyond any doubt. There's no doubt about it. Now, why is English important? Why not other languages? See, we have altogether across the nation. Across the nation means in the globe. Globe means पूरे विश्व में we have more than 7,000 languages. But why is only English treated as most important? Why? The reason is it's treated as an official language. Now what is official language? Official language is 70 countries से भी ज़्यादा है ना, आउट ऑफ आई थिंक 230 या 250 टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं. आउट ऑफ देम 70 कंट्रीज दे ट्रीट इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज आखिर है क्या, ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स लाइक इन इंडिया, अच्छा ये जो 70 कंट्री से आउट ऑफ विच इंडिया, इन इंडिया ऑल्सो वी ट्रीट इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ फर्स्ट आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज का ये मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली इज ऑफिशियल लैंग्वेज? फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ यू गो टू बैंक, if you go to post office, if you apply for UPSC, ठीक है, और anything, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का भी है या नॉन गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट में तो डेफिनेटली इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इवन इफ़ यू अप्लाई फॉर एनीथिंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस ऑल्सो, बैंक में आप जाओ, व्हेन यू फिल अ फॉर्म, आप किसी भी फॉर्म को भरो, वन साइड ऑफ द फॉर्म विल बी इन द लोकल लैंग्वेज. एक साइड क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इन पुणे, इफ़ आई गो एंड फिल अ फॉर्म इन द बैंक, वन साइड एक तरफ लैंग्वेज जो क्या रहेगी, दैट विल बी मराठी. व्हाट वी कॉल दिस मराठी, दिस इज़ योर स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज़ योर स्टेट लैंग्वेज, ठीक है. सो वन साइड ऑफ द फॉर्म विल बी इन द स्टेट लैंग्वेज वाइल द अदर साइड ऑफ द फॉर्म विल बी इन इंग्लिश, है ना. सो एक साइड एक लैंग्वेज मैंडेटरी इंग्लिश में रहेगा. इवन इफ़ यू गो टू पोस्ट ऑफिस, इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी UPSC और एनी गवर्नमेंट जॉब, इवन इफ़ यू चेक एनी गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है, इवन इफ़ यू चेक गवर्नमेंट वेबसाइट, यू विल ऑलवेज सी वन इंग्लिश, वो पहले इंग्लिश में आएगी, एंड देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज़ योर लोकल लैंग्वेज. फिर आपको हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली जो भी है, यू विल गेट अदर ऑप्शंस एज वेल. सो दिस इज़ द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ ट्रीटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारे इंडिया में भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है. दिस इज़ द रीज़न you should actually learn, because see we have so many languages,
वी हैव ऑलमोस्ट आई थिंक इन इंडिया कितने हैं 17 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं. सो यू शुड नॉट, इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरी इंडियन टू लर्न ऑल दिस 17 लैंग्वेजेस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू ओरिसा और द नॉर्दर्न part or any part, it's not possible for everybody to learn all the language. So what we can do, one is your mother tongue. What is mother tongue? The language what we speak at home, ठीक है. And then the second one is, if you learn English, you can travel to every part of India. Not only India, you can travel to the entire globe, ठीक है, with the help of English. ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है that even inside India, if you're traveling southern part, if you go, even if they don't speak Hindi, they will definitely respond you, they will reply to you in English, ठीक है. So that's the reason it is called as an official language. Now, what are the common problems, what are the challenges we face while learning English? क्या होता है? Fear of making mistakes. This is the biggest one. Maximum 90% of the student, they don't speak because they fear of making mistakes. क्यों? देखो, वैसे तो when we start learning, हम जब भी कोई एक नई भाषा सीख रहे हैं, for example if I am trying to learn Marathi, ठीक है, I am not proper from Maharashtra, ठीक है, I am Saxena, I am not proper from Maharashtra. So if I am trying to learn Marathi and in case if I make a mistake, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा माई फ्रेंड्स विल लाफ ऑन मी एंड देन दे विल एट द सेम टाइम दे विल करेक्ट मी कि ओके रजनी, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, तुमने जो बोला दैट वाज सो फनी, इट वाज फनी बट दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश जब हम बोलते हैं और हम जब कुछ गलत कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश इज़ ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ स्टाइल, ठीक है. लोग ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो, बट दैट इज़ द सैड रियलिटी. लाइक व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, पीपल फील लाइक ओ ये बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रही है, शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ शो ऑफ. इसको बहुत हाई प्रोफाइल शो ऑफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया गया है. पीपल फील लाइक ओ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ शो ऑफ एज इफ शी नोज एवरीथिंग एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट. ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू. अनलाइक एनी अदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम इज़ पीपल टेक इट कि स्टाइल है, शो ऑफ है, हाई प्रोफाइल है, ऐसा बहुत सारा लोगों ने अपने आप ही इसको क्या बोलते हैं, बहुत हाइप कर दिया है. सो व्हेन यू मेक अ मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, लोग क्या करते हैं, ठीक है, वाइल यू मेक मिस्टेक, तो लोग क्या करेंगे, दे विल लाफ ऑन यू. एंड देन अब सीधा रिएक्शन पहला यही आता है कि जब नहीं आती है तो क्यों स्टाइल मार रही है ना. लोगों को क्या लगता है, स्टाइल मार रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम स्टाइल मार रहे हैं. तो दैट इज़ द रीज़न पीपल दे विल ऑलवेज डिस्करेज यू. एंड देन कोई नहीं चाहेगा कि अपना मजाक उड़ा के ले सामने वालों से, है ना. दैट इज़ फॉर श्योर. सो दैट्स द रीज़न पीपल इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग आपको सही करे, वो कैसे करेक्ट करेंगे, उन्हें खुद ही नहीं आती है, वो आपको क्या करेक्ट करेंगे, है ना. तो बिकॉज दे कैन नॉट, जो चीज़ हमें नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है कि आगे वाले ने भी नहीं करना चाहिए वरना वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा. आई डोंट नो, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स टोल्ड कि वो बोलते हैं तो बहुत फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, तो दे हैव अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. Even in the offices they are not able to contribute, even if they are very smart they are not able to contribute because they say कि गलत इंग्लिश बोल देंगे हमारा मजाक उड़ा दिया जाएगा. then grammar mistakes obviously नहीं आता है तो you will land up in problem. and if you make a grammar mistake, this is such a big mistake, मतलब big mistake in the sense if you make grammar mistake the problem is आपके पूरे sentence का meaning change हो जाता है. grammar is the backbone. बैकबोन मतलब क्या होता है, जैसे अपने बॉडी में जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है पूरे बॉडी के लिए, वैसे ही ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ योर बैकबोन. इसके बगैर तो आपके सेंटेंस बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाएंगे. ग्रामर से ही पता चलता है कि कौन से आप काल की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई वॉज स्लीपिंग, मैं कल सो रही थी, एंड आई एम स्लीपिंग, चलो मैं स्लीपिंग एग्जाम्पल की जगह कुछ और लेती हूँ. आई एम टॉकिंग, सोते समय कैसे बात करेंगे, ठीक है. आई वॉज टीचिंग, एंड इफ आई से आई एम टीचिंग, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस यहाँ पे, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ये मैं कल पढ़ा रही थी, कल पढ़ा रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ, कल पढ़ा रही थी. आई एम टीचिंग मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूँ,
है ना. So now the complete sentence, the meaning is completely shifted. दिस इज़ टू डिफरेंट टेंसेस हो गए. ये तो कल हो रहा था, है ना. सो दिस इज़ हाउ ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू स्पीक रॉन्ग ग्रामर यू विल completely change the meaning. That is the important, you should learn grammar. Misuse of articles and preposition, this is again very important. ये दिखने में a, an, in, on, at बहुत छोटा दिखता है, but this plays a huge important. This also creates complete, बहुत ज़्यादा इससे चीज़ों, आई मीन लाइक द सेंटेंसेस विल कम्प्लीटली शिफ्ट. जैसा मैंने अभी जस्ट दिस एग्जाम्पल, नाउ दीज आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट सिनेरियो. दो अलग काल में काम हुए हैं. दिस हैपेंड इन द पास्ट एंड दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. Likewise, there's a difference when you use wrong preposition. I'll give you one example. I am in the hospital. I am at the hospital. ठीक है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस प्रॉपरली. दोनों में क्या दिख रहा है? ऑल दी सेंटेंस, आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम at the hospital. Now what is the difference? Instead of in, I have just used another preposition called at. क्या difference है दोनों में? सुनने में तो सेम ही लग रहा है, but this is completely different scenario. I am in the hospital का मतलब होता है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ and I am undergoing some treatment. Admit, ठीक है. आई एम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आई एम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ एंड आई एम अंडर गोइंग सम ट्रीटमेंट्स. ओके. नाउ व्हेन आई से आई एम एट द हॉस्पिटल, इट मीन्स आई एम स्टिल इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, बट आई एम नॉट एडमिटेड, आई एम नॉट अंडर गोइंग एनी ट्रीटमेंट. इट्स जस्ट लाइक, या तो मैं हॉस्पिटल के पास खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं हॉस्पिटल के लोकेशन पे खड़ी हूँ. इफ़ समबडी, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई फ्रेंड सेज ओके कहाँ से पिक करना है, और एल्स इफ़ आई हैव बुक्ड अ कैब, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इस लोकेशन से मुझे पिकअप करो. और एल्स आई एम अगेन इन द हॉस्पिटल, ये दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आई एम इन द हॉस्पिटल बट आई एम नॉट एडमिटेड, आई एम नॉट अंडरगोइंग एनी ट्रीटमेंट. इट्स जस्ट कि आई हैव विजिटेड टू सी समवन एल्स जो एक्चुअली एडमिट है. ठीक है. या तो मैं किसी से मिलने गई हूँ जो एडमिट है, या फिर मैं हॉस्पिटल में एक रेगुलर डॉक्टर से मीटिंग के लिए गई हूँ, एक रेगुलर कुछ डिस्कशन के लिए गई हूँ, या मैं हॉस्पिटल पे खड़ी हूँ, उस लोकेशन पे खड़ी हूँ. नाउ यू सी द डिफरेंस. both the conditions are completely different, both the situations are different. यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पर मैं इन जनरल चेकअप भी नहीं, जनरल या किसी से मिलने गई हूँ, या फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल के आसपास खड़ी हूँ. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ हाउ द complete situation changes when you are using a wrong preposition. तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है. दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रामर में ही आ जाएगा. लिमिटेड vocabulary, दिस इज़ अगेन अ बिगर इशू. ठीक है. Why this is a bigger issue? Because यहाँ पर क्या है, if you have limited number of words, if you're not able to express, आपको बोलना है कि मुझे बहुत ही ज़ोर से चक्कर आ रहा था, या मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा था. एंड इफ़ यू डोंट नो द वर्ड हेडेक, या मुझे सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस वाला. इफ़ यू डोंट नो दिस वर्ड यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ वोकेबलरी. वोकेबलरी एंड ग्रामर आर द बैकबोन्स. ये दोनों भी बैकबोन्स है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. आने वाले स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन. फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इशू, ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टी, दिस इज समथिंग यू विल अचीव ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम. पहले हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीखेंगे एंड देन लेटर once you start speaking definitely we will work on pronunciation as well. Okay, so these are the certain things which everybody face problems. Now this slide is very important. कई बार you will see this graph shows कि जो actual job है, for example there is a job of a reception. ठीक है. कौन सी जॉब निकली है? इट्स जस्ट द जॉब ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट और अकाउंटेंट.
ठीक है. फॉर द अकाउंटेंट यू आर अ परफेक्ट पर्सन, यू नोज ऑल द अकाउंटेंसी, यू नो एवरीथिंग, बहुत अच्छे हो आप. ठीक है. तो रियल जॉब करने के लिए जो स्किल चाहिए, हियर दिस ग्राफ शोज स्किल्स टू डू द जॉब. ये इतना कम ही है, ये स्किल इतना छोटा है, इतना आसान है. बट यहाँ दिस ग्राफ शोज स्किल टू क्रैक द इंटरव्यू. इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो स्किल है वो आपको इतना बड़ा चाहिए. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक, आप इंटरव्यू में इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, आपको इंटरव्यू में इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाए, तो आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एंड द पर्सन जो HR है, दे विल फील लाइक ओ यू आर नॉट गुड फॉर द रोल, ऑल्दो यू आर 100% राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. आपको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग आती है, बट यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश, एंड दैट्स द रीज़न यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड देन यू डिड नॉट क्रैक द इंटरव्यू. MNCs में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के सिलेक्शंस इसी वजह से नहीं होते हैं. दिस इज़ द रियल facts which I am sharing with you. ठीक है, based on the previous experiences what our students told. ठीक है, now what do we offer at SS Academy? यहाँ क्या क्या मिलने वाला है? First of all, we are an ISO certified company. We do have one-to-one consultation. We all the faculty will be skilled faculty. I'll be your faculty. Okay, I have worked with MNCs. It's a live doubt session. It's like two way interaction. It's not like I'll be explaining and you're just looking like a video. We will communicate, and everyday basis you will see how we कम्युनिकेट. जो भी डाउट है इमीडिएटली क्लास में आपका सॉल्व होगा. ये वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा नहीं है. ठीक है, इमीडिएटली विल सॉल्व योर सॉल्व योर डाउट्स. देन वी हैव पर्सनालिटी एंड एडिशनल इंटरव्यू एटिकेट्स. क्योंकि बिकॉज वी नो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू लर्न इंग्लिश बिकॉज दे वांट टू अटेंड सम और द अदर इंटरव्यू. सो दैट्स द रीज़न व्हाट वी डू. वी आर कवरिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू एटिकेट्स एज वेल. Then second is business email and resume drafting. Will help you with business resume and email draftings as well. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाएंगे, आपका बिजनेस ईमेल. दीज आर द एडिशनल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद रेज्यूमे. हर कंपनी में आपको रेज्यूमे पहले ही चाहिए है. एक अच्छा रेज्यूमे कैसे लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर कम्प्लीटली फ्रेशर्स, right? So they will get benefited how to write resume and then how to write business email. Definitely you will get lifetime access to the study material everyday basis. ये तो हम हर दिन ही आपको स्टडी मटेरियल जैसे जैसे क्लास होता है आपको भेज देते हैं. रिकॉर्डेड सेशंस प्लस डेली का असाइनमेंट्स एंड द स्टडी मटेरियल. आफ्टर दिस 90 days प्रोग्राम, 90 days के प्रोग्राम के बाद में, बिकॉज यू स्टिल नीड समवन टू टॉक टू, राइट, यू विल गेट एन एप्लीकेशन. हमारा एक एप्लीकेशन है, यू विल गेट एक्सेस विच विल बी कम्प्लीटली फ्री. ये जो है ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में हेल्प करेगा. यहाँ पे यू विल कनेक्ट विथ ऑल द स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स जो पहले के हैं, और वी डू हैव, पहले तो ये सिर्फ एक्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, बट नाउ इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी. आपको यहाँ पे बात करने के लिए लोग मिल जाएंगे. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं यहाँ पे. पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इट्स अ फन एंड ईजी लर्निंग अप्रोच. आप अभी देखोगे थोड़े समय में रेगुलर असाइनमेंट्स, एज आई सेड एवरीडे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल गेट सर्टिफिकेट एज वेल. ओके, नाउ ये पूरा जर्नी हम ख़त्म कैसे करने वाले हैं. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली 60 डे लर्निंग प्रोग्राम हमारा कैसे होने वाला है. ठीक है, इसमें जो शुरुआत होगी, सी आई टोल्ड यू दीज आर द टू हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज. लैंग्वेज कैसे करते हैं, सबसे पहले द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज. ओके, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, यू से एनी लैंग्वेज. आपको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न मराठी, जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, और क्या है, पंजाबी, ठीक है, तेलुगु, वट एवर यू नेम एनी लैंग्वेज. हर एक लैंग्वेज को के दो बेस होते हैं, पिलर्स. आई कॉल देम पिलर्स ऑफ लैंग्वेज. पिलर्स क्या होते हैं, पिलर्स इज़ लाइक व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस. आप क्या कर रहे हो जब अपना घर बना रहे हो, तो जो पिलर्स होते हैं, नींव जो है, ठीक है, नींव उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, देन योर
हाउस विल बी रेडी, आपका एक घर बहुत मजबूती से बनेगा. लाइक वाइज सिमिलरली फॉर अ लैंग्वेज, फॉर इंग्लिश और वॉट एवर लैंग्वेज, दो पिलर्स होते हैं. दो पिलर्स का मतलब व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वन इज़ योर ग्रामर, ठीक है, ग्रामर होता है, एंड वन इज़ योर वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी. ना व्हाट इज़ ग्रामर एंड व्हाट इज़ वोकैबुलरी. ग्रामर जो है वो हर चीज़ आती है. ग्रामर मतलब सिर्फ टेंसेस नहीं है, ग्रामर में सभी हैं. टेंसेस, टेंसेस मतलब कितने 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं जो अभी हम सीखेंगे. टेंसेस का भी क्लासेस रहेगी, आज ही रहेगी. देन सेकेंड विल बी योर एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, प्रिपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, कंजंक्शंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है. देयर इज अ लॉट टू लर्न इन ग्रामर. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रामर. ग्रामर मीन्स आप ऐसा समझ लो, टू क्रिएट अ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसको बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? जो भी हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें आएगी उसमें ए एंड, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू दिस एंगेज, लाइक टेक फॉर एन एग्जांपल, कंसिडर दिस वन. अगर मैं ये वर्ड को पढ़ूँ, ठीक है, अब अगर इफ़ यू रीड दिस, engage with podcast, movies and real life conversation to improve comprehension. Now this complete sentence ये कैसे बना है? This sentence is made up of multiple things. इसमें बहुत सारी practice active listening by noting down new words and repeating phrases aloud. तो ये जो पूरा sentence बना है, it has so many things. It has verbs, it has articles, prepositions and क्या है, ठीक है, conjunctions, part of conjunction. To is your preposition, improve comprehension. This is adjective, adverb, everything is involved. तो एक sentence जो बनता है all together, it's a combination of several things. उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो ग्रामर इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल these things. Wait, I'll show you one more example. Best example of parts of speech. Yeah, look at this chart. ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? You see this one complete sentence. ये जो सेंटेंस बना है, कंप्लीट जब सेंटेंस बनता है, इट हैज़ सेवरल थिंग. सेंटेंस बना है, वाओ, शी क्विकली गेव हर यंगर ब्रदर अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे एंड एवरीबडी क्लैप्ड, एवरीवन क्लैप्ड. क्या क्या घटना क्या हुई है? उसने वाओ मतलब खुशी दिखा रही है, और क्या बोला जा रहा है? उसने अपने छोटे भाई को एक गिफ्ट दिया. कब दिया? ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे, और सब लोगों ने क्या की? ताली बजाई. तो ये है इसमें दिस इज इंटरजेंक्शन. वाओ क्या इंटरजेंक्शन? प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, ठीक है. ये भी है, आर्टिकल है यहाँ लिखा नहीं है, आर्टिकल, कंजंक्शंस, एवरीथिंग इज कवर्ड. तो एक सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ देखो हिंदी में जितने वर्ड हैं ये सब मिलाकर एक वर्ड, एक सेंटेंस बना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच. दिस इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच. इसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर आपका एक सेंटेंस बनता है. वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है. दैट्स द रीज़न दिस इज़ वन पार्ट ग्रामर. एंड देन सेकेंड इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी क्या है? दिस इज़ योर शब्दकोश. शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब है दिस इज़ योर डिक्शनरी. हर वर्ड होना चाहिए. नाउ आई विल टेल यू हाउ बोथ आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई वांट टू से आई वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, दिस इज़ वन सेंटेंस. नाउ सेकेंड आई एम राइटिंग आई वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है. नाउ आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस. आपको यहाँ क्या दिख रहा है? दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं. क्या लिखा है मैंने? आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. यहाँ पर भी सेम है, आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी. यू विल सी अ स्मॉल डिफरेंस. यहाँ आई हैव रिटन वॉन्ट, हियर आई हैव रिटन वॉन्टेड. अब नाउ आई विल राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस. यहाँ पर मैं बोल रही हूँ मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए.
ठीक है. दिस वर्ड, द फर्स्ट सेंटेंस, इट मीन्स मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए. नाउ व्हाट डज द सेकेंड सेंटेंस मीन्स? इट मीन्स मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए थी. ठीक है, मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए थी. हियर आई एम सेइंग मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए है. ठीक है, नाउ दिस इज़ है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ पे अभी मुझे चाहिए, मुझे इस वक्त कॉफ़ी चाहिए है. एंड हियर इट मीन्स मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए थी. नॉट नाउ, ये कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 1 महीने पहले हो सकता है, मैं पिछले साल की बात बता सकती हूँ. सो डू यू सी द डिफरेंस? इट्स जस्ट विथ वन वर्ड द एंटायर मीनिंग हैज़ चेंज्ड. ठीक है, ये अभी की ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग टू शो कि मुझे कॉफ़ी चाहिए थी. व्हाट इफ़ आई से कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर कोई सीरियस मैटर है, एंड इफ़ यू आर सेइंग किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हुआ है तो क्या है? दिस सिचुएशन इज़ रियली, क्या बोलेंगे? इट्स एन अर्जेंसी सिचुएशन. अर्जेंट क्या है? सिचुएशन क्या है? ये अर्जेंट है ना. अभी क्या, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा. एंड व्हाट इफ आई से कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था. नाउ था, इट्स ऑलरेडी डन. हो सकता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है. सो दिस इज़ हाउ द ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका पूरा की पूरा सिचुएशन विल चेंज विद द, इन केस इफ़ यू आर यूजिंग अ रॉन्ग ग्रामर. ऑलराइट, नाउ सेकेंड कंडीशन, ये तो हो गई. दिस इज अबाउट ग्रामर. नाउ आई विल टॉक अबाउट वोकैबुलरी. अगर मैं बोलूं कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से यहाँ बारिश हो रही है. ठीक है, अब अगर नाउ दिस इज द सेंटेंस. नाउ अगर मुझे वो क्या, अगर मुझे फॉर एग्जांपल, चलो इसके वर्ड्स भी पता है. सुबह के लिए आपको यूज़ करना है मॉर्निंग. ठीक है, यहाँ हियर, बारिश के लिए रेन हो रही है. ठीक है, हो रही है, मतलब ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया. ठीक है, अब ग्रामर, सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि मैंने आपको सारे शब्द दे दिए. ठीक है, ओके. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? ओके, आई हैव रिमूव्ड प्रीवियस. हाँ चलो, ये एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि ना ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इवन इफ़ यू नो ऑल दिस. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, कप के लिए कप ही बोलते हैं. लाइक कप को इंग्लिश में कप बोलते हैं, कॉफ़ी को कॉफ़ी बोलते हैं, आपको चाहिए है उसको वांट बोलते हैं. मुझे चाहिए तो मैं वांट बोल रही हूँ, या मुझे नीड बोल रही हूँ, है ना. यू शुड नो दिस वर्ड्स. अगर आपको ये वर्ड्स ही नहीं पता है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वोकैब, दिस इज़ शब्द. अगर आपको शब्द ही नहीं पता तो हाउ विल यू एक्सप्रेस. अब ठीक है, वहाँ आपको शब्द की ज़रूरत है, वो क्या. यहाँ पर ग्रामर. नाउ अगर इफ़ यू ऑलरेडी नो ऑल दिस वर्ड्स, मैंने आपको वर्ड्स भी दे दिए कि सुबह, सुबह के लिए मॉर्निंग यूज़ करो, यहाँ के लिए हियर यूज़ करो, रेन के लिए, बारिश के लिए बारिश यूज़ करो. बट इफ़ यू डोंट नो ग्रामर, अब आपको ग्रामर नहीं पता, आप कैसे बनाओगे? विल यू डू इट लाइक दिस? ऐसे ही लिखोगे क्या, सुबह के लिए ये यूज़ कर लो, मॉर्निंग हियर रेन? Will it be the sentence? Is this the correct sentence? And do you understand? Is it creating any sense? कुछ समझ में आ रहा है? कोई आपको ऐसे बोले morning here rain, क्या हो रहा है? आगे वाला confuse हो जाएगा. What are you trying to say? You need to use proper grammar. It is raining. It is raining since morning. It is raining here since morning. अच्छा, आप बोलोगे मैंने इट इज़ नहीं बताया. चलो मैं आपको यहाँ भी बता दूँ. इट इज़ यूज़ करो. ठीक है, सिंस यूज़ करो. ठीक है, मॉर्निंग तो मैंने बता दिया. नाउ इवन इफ़ आई टेल यू ऑल द वर्ड्स, अगर मैंने आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स दे भी दिए, बट यू शुड नो हाउ टू राइट देम प्रॉपरली. मॉर्निंग हियर रेन इट इज़ सिंस.
Will you say like this? No, this is not the correct way. You need to know, आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए, तभी your sentence will be a meaningful sentence. Otherwise your sentence will be like this. It will sound like stupid कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, बता दे ठीक से, हिंदी में ही बोल दे, है ना. मॉर्निंग हियर रेन, इट इज सिंस, इट मेक्स नो. और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड को एज इट इज उठा उठा के उसके अकॉर्डिंगली लिख दो. नो, इट हैज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मेंटेन of creating. All right, now it is raining here since morning. When I say like this, you will understand, okay, she is trying to say कि सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है. All right, so this is how both the things are important. अब समझ में आया, like what are the different roles of vocabulary and grammar? बोथ आर इम्पॉर्टेंट. हम बोल सकते हैं कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ग्रामर का अपना रोल है. विदाउट ग्रामर यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट सेंटेंस प्रॉपरली, एक मीनिंगफुल नहीं बनेगा. एंड विदाउट वोकैब, ठीक है, शब्द के बगैर आप नहीं बना सकते. आपको शब्द का नॉलेज भी होना चाहिए एंड देन वोकैब. नाउ द बेस्ट पार्ट इज, ठीक है, बेस्ट पार्ट इज इसमें से वोकैबलरी इज समथिंग, आपका बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. दिस इज like you will keep learning new words. What we have done is we have added 1000 words. एक ऐसे 1000 वर्ड्स लिए हुए हैं जिसमें वोकैबलरी का आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा. ठीक है, वी हैव टेकन ऑल द नेसेसरी. इसमें दोनों भी टाइप के वर्ब्स वी आर कवरिंग डे टू डे वर्ब्स भी इसमें यूज़ करेंगे. डे टू डे का मतलब क्या होता है, जो डेली आप यूज़ करोगे. इसमें से ग्रामर पार्ट पढ़ने में आपका 60 डेज़ का समय जाएगा. ठीक है, दिस इज़ वन टाइम प्रोसेस. ये एक बार आप पढ़ लो, लाइफ टाइम यू विल यूज़ द ग्रामर रूल्स. एंड देन वोकैबलरी इज समथिंग विच यू विल कीप इम्प्रूविंग विद द प्रैक्टिस. ठीक है, अब नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्रामर, वोकैब, कौन सी चीज़ के क्या क्या सोर्सेस हैं, हम कहाँ से पढ़ते हैं. ग्रामर इज़ समथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल से कि क्या ज़रूरी है हमें ग्रामर पढ़ने की, और ओप्स, क्या ज़रूरत है. पीपल फील लाइक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. दे जनरली से कि नहीं हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आवर मदर टंग वॉज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी लर्न. हमने तो पढ़ा ही नहीं था ग्रामर, इट्स नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, मुझे हिंदी तो ऐसे ही आ गई, मम्मी से ही मैंने सीख लिया, फैमिली से सीख लिया. नो, दिस इज़ रॉन्ग assumption. This is something wrong. आपने मम्मी से पूरी हिंदी नहीं सीखी है. आपने क्या सीखा है, I'll tell you. हमने जो है हिंदी के ग्रामर जो है वो स्कूल में सीखा है. अगर सबको अपनी भाषा घर से ही सीखनी है तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्कूल में हिंदी लैंग्वेज, हिंदी सब्जेक्ट क्यों है. इट शुड बी completely removed. It should be, I mean it should be eliminated, है ना. It's not necessary. Why we have this Hindi language in the school, क्या ज़रूरत है इसकी, because we are learning from our mom. No, because ग्रामर पार्ट वॉज टॉट इन द स्कूल. ये हमने स्कूल से सीखा. मात्राएं लगाना, था की मात्रा, थी की मात्रा, है ना, आ ई ई क ख ग घ ण, है ना, वो जा रही है, आ रही है, खाता है, पीती है, ये सारा जो ग्रामर पार्ट वॉज समथिंग विच वी हैव लर्न ड्यूरिंग द स्कूल. ये क ख ग घ ण लिखना, आ ई लिखना, मात्राएं सिखाना, दिस वॉज पार्ट ऑफ द स्कूल. ये हमने स्कूल से सीखा था. अपनी भले ही वी टॉक अबाउट आवर मदर टंग, राइट. एंड वोकैबलरी. नाउ you guys, I'll give you some more example. and चलो इसी पे आते हैं. जैसे हमको अब लगता है कि मेरी मदर टंग में तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. एवरीवन नोज व्हाट इज़ हिंदी. हिंदी सबको आती है, यहाँ पे सभी को पता है. नाउ इफ़ आई आस्क यू सर्टन थिंग्स लाइक मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं. आप लोग सब लोग सोचोगे अभी मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं. टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वी डोंट नो. रेलवे स्टेशन, बिकॉज दीज आर सर्टन थिंग्स. फ्लाइट तो फिर भी जहाज किसी ने सुना भी होगा. वी डोंट नो व्हाट वी से दिस, व्हाट आर द हिंदी वर्ड्स फॉर दिस. मोबाइल कोई तो भी ध्वनि यंत्र ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है, बात करने का. टीवी जो है दूरदर्शन है, दूरदर्शन कैसे लिखते हैं, दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन. रेलवे स्टेशन यात्री आमन गमन स्थान, ऐसा कुछ तो भी है.
सो वाई वी डोंट नो. अब तो हम बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ, मुझे तो हिंदी पूरी आती है, बट स्टिल आई डोंट नो दिस वर्ड्स. वाई? बिकॉज वी नेवर केम अक्रॉस द हिंदी वर्ड. ये इंग्लिश में ही इतने फेमस हैं. तो कोई भी लैंग्वेज आने के लिए ये वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में भी नहीं था, बिकॉज आई नेवर यूज्ड द हिंदी वर्शन. आई ऑलवेज यूज्ड मोबाइल. मोबाइल के शॉप पे भी जाके अगर मैं बोलूँगी मेरा वो ये यंत्र ठीक कर दो, तो द पर्सन विल बी लाइक ओ माई गॉड, क्या मांग रही है, क्या ठीक करना है, कौन सा यंत्र ठीक करना है. ही विल फील लाइक कोई रॉकेट साइंस लेकर आ रही है क्या, है ना. सो नोबडी नोस. तो कितनी भी अच्छी हमारी भाषा हो जाए, अगर वो शब्द हमने सुने ही नहीं तो हम अभी भी नहीं बोल सकते. तो अगर मैं बोलूँ मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती, फिर भी मुझे वो चीज़ तो मैंने सुनी नहीं, सो हम नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि वो शब्द नहीं सीखे. ठीक है. सो दिस इज द रीज़न वी लर्न ग्रामर फ्रॉम द स्कूल. नाउ व्हाट इज़ वोकैबलरी? वोकैबलरी इज़ योर शब्दकोश, जैसा मैंने अभी बताया, शब्द कोश. तो अभी जैसे मोबाइल, अब मैंने पूछा, आप नहीं बता पाए मुझे कि मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं. ये है शब्द. दिस इज शब्दकोश. हम जो सीखते हैं, ठीक है, जो घर से, फैमिली से, लाइक इन हिंदी, अगर मैंने हिंदी सीखी है, मैं अच्छी हिंदी बोल रही हूँ, तो ग्रामर पार्ट वाज डन फ्रॉम द स्कूल. एंड जो बाकी का वोकैबलरी है, दिस वाज डन फ्रॉम फैमिली. यहाँ से दिस वाज डन. व्हाट वर द सोर्सेज? फैमिली, फ्रेंड्स, है ना. ये सब हम कहाँ से सीखे हैं? वी हैव लर्न फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. बहुत सी चीज़ें हैं. अब मुझे बताओ, जैसे घर का जो है, घर के कुछ कुछ काम है, रोटी पकाना या फिर आटा गूंथना. आटा गूंथना, क्या ये वर्ड मैंने स्कूल से सीखा? क्या मुझे टीचर ने सिखाया गूंथना बोलते हैं इस वर्ड को? नो, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माई फैमिली कि आटा गूंथने को आटा गूंथना बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ, अब्यूजिव लैंग्वेज. एब्यूसिव लैंग्वेज, व्हाट इज एब्यूसिव? किसी को गाली देना. ठीक है, गाली देना. क्या गाली देना हम क्या स्कूल से पढ़ के आते हैं क्या? किसी के भी स्कूल में पढ़ाई जाती है गालियाँ देना कैसे? नो, वी डोंट लर्न. अगर आपने ऐसा जाके स्कूल में बोला भी तो टीचर पहले ही पिटाई कर देगी कि ये इतनी घटिया लैंग्वेज कहाँ से सीख के आ रहे हो, है ना. पेरेंट्स को पता चलेगा ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, वो आपकी पिटाई कर देंगे, इतनी घटिया लैंग्वेज कहाँ से सीख रहे हो. दिस वी लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सोसाइटी, है ना. सो देयर आर, कोई भी एक लैंग्वेज को सीखने में मल्टीपल चीज़ें रोल अदा करती है. कुछ पार्ट तो हम, ग्रामर वाला पार्ट जो है वो हम स्कूल से पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी लर्न फ्रॉम द स्कूल. एंड वोकैबलरी वाला पार्ट जो है, दिस इज समथिंग विच वी लर्न फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली. सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेस. इनको क्या बोलते हैं? अलग अलग सोर्सेस से हम पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दीज आर द टू बैकबोन. वन इज योर vocabulary and second is grammar. तो हमने क्या किया है? we have taken day to day vocabulary. यहाँ पे हमने क्या किया है? we have taken day to day vocabulary. day to day का मतलब है रोज़ रोज़ यूज़ की जाने वाली, डेली. जैसे कि वोकैबलरी कौन कौन सी आएगी? वेट, आई विल शो यू द वोकैबलरी चार्ट ऑल्सो. इसमें ऐसे वोकैब का पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं जो आपको रोज़ काम में आएंगे. सबसे पहले हम शुरुआत ऐसे ही शब्दों से करेंगे जो आप इमीडिएटली क्लास में सीखने के बाद में घर पे उसको इस्तेमाल करके अपने शब्द बना सकते हैं. 1 सेकेंड. जैसे कि ये देखिए, ठीक है, और इस चार्ट को, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस चार्ट. वी हैव एडेड 100 सच. फर्स्ट, टू स्टार्ट विथ, वी आर यूजिंग 100 सच वर्ब्स. खाना, पीना, सोना, हंसना, जागना, आना, बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, चलना, बताना, पूछना, उत्तर देना. दीज आर द वर्ब्स. और ये हम ऐसे वर्ब से स्टार्ट करेंगे सीखना, बिकॉज इमीडिएटली ये आप रोज़ घर पे यूज़ कर सकते हो. वंस यू स्टार्ट लर्निंग, अगर मैं इसमें से 3 शब्द का आपको सिखा दूँ बनाना, रेस्ट ऑफ द वोकैबलरी इज समथिंग विच यू कैन यूज़ ऑन योर ओन. और आप ऐसे इमीडिएटली, इससे क्या हेल्प हो जाएगा? यू विल स्टार्ट मेकिंग एंड यूजिंग. आप बात करना शुरू कर दोगे फ्रॉम द डे 1. ठीक है. वी हैव एडेड एडवांस्ड लेवल वर्ब्स ऑल्सो. एडवांस जैसे कि कैसे हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग, जैसे मैं ऑफिस का लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ आई एम सेइंग इम्प्लीमेंटिंग,
ठीक है, implementing these rules, or if I say optimize, ठीक है, ऑप्टिमाइज मैं ऐसा कुछ यूज़ करूँ वर्ड, और डेवलप, ठीक है, डेवलप इज समथिंग यू कैन यूज एट होम ऑल्सो, इनोवेट, ठीक है। तो ये जो भारी भारी वर्ड्स हैं, यू मे नॉट बी एबल टू यूज़ इट इन योर डे टू डे, रोज़ के लैंग्वेज के ये ज़रूरत नहीं है, ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज़ इट इन द ऑफिस। सो व्हाट वी आर डूइंग, अगर मैं ऐसे ईट, स्लीप, ठीक है, गो, कम, इस टाइप के जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी, दिस इज़ समथिंग विच यू विल यूज़ डेली, तो आप immediately सीखोगे। That's the reason what we are going to do. We are going to use day to day vocabulary, and then one second. Here what are we going to do, we are going to use day to day vocabulary plus grammar। जैसा मैंने बताया था, ग्रामर डे 1 से शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग। तो ऐसे शब्द बनाने हम डे 1 से शुरू करेंगे, विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल ऑल्सो क्रिएट डूइंग, यू विल ऑल्सो डू अलॉन्ग विथ मी, देन विल हैव द प्रैक्टिस स्पीकिंग। वंस दिस इज डन, दिस टू थिंग्स लाइक आपके सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, ग्रामर इटसेल्फ टेक 60 डेज, 60 दिन लगते हैं आपको पूरा ग्रामर बिल्कुल डेप्थ में सीखने में। यहाँ इतने डेप्थ में है कि आई वॉन्ट बी टीचिंग यू लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगी आपको कि डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस बनाने कर दो। आई कैन राइट, या आई एम राइटिंग, ठीक है। हियर यू विल लर्न आई कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, राइट कहाँ से है, राइट और राइटिंग में क्या डिफरेंट है, राइट, देन व्हाट इज राइटिंग, राइटिंग ही क्यों लिखना है, राइट क्यों नहीं लिखना है, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल एक एक, आई ही क्यों आया, यू क्यों नहीं है, एम क्यों कहाँ से आ गया, एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक से है। यू नीड टू सी ऑल दीज क्लासेस, यू नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड देन यू विल सी कि कितना बेसिक से है। डायरेक्ट ऐसे नहीं बताने वाली हूँ मैं कि आई कैन राइट, यू कैन राइट, शी कैन राइट, डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस, वी आर नॉट क्रिएटिंग सेंटेंस। फर्स्ट वी विल लर्न आई क्या होता है, शी क्या है, ही क्या है, यू क्या है, कैन कहाँ से आ गया, राइट, राइटिंग, राइट क्या है, ये वर्ब है, इसको वर्ब क्यों बोलते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एक एक वर्ड से यहाँ से कवर होने वाला है। ओके, सो 60 days will be spent, complete कितने लगेंगे, will take 60 days to learn all these part, and then you will start creating your own sentences। creating तो day 1 से हो जाएगा, but speaking will start। And for those who are looking, these are the additional things which we are offering, like essay writing, email writing, resume creation, everything is additional. These are the bonus which we are offering you. Group discussion once your 60 day, actually this course is for 90 days course hai, out of which 60 days will be spent in learning grammar, next 30 days इनिशियली 15 डेज यू विल बी गिवन लॉन्गर सेंटेंसेस, आपको पूरे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वन सेकेंड, आई विल शो यू इफ आई कैन शो सम एग्जांपल्स, जैसे कि ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो लाइक दिस इज, ओके आई विल शो सितंबर बैच, दिस वाज द सितंबर बैच, अब ये हो चुकी है। व्हाट वी डिड, इसमें पूरे लंबे लंबे इनको सेंटेंस लाइक वंस इट इज़ डन, चलो यहाँ नहीं, आई विल शो यू हियर इटसेल्फ, क्लास में कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं, इट्स टेकिंग टाइम। ओके, ठीक है, जब तक यहाँ से स्टार्ट होगा आई विल शो यू कैसे, लाइक वंस यू आर डन, वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन एवरी डे वंस योर ग्रामर पार्ट लर्निंग पीरियड इज डन, what are you going to do, later we'll give you longer sentences जो एडवांस लेवल के sentences है, because बेसिक लेवल सेंटेंस तो हम क्लास में ऑलरेडी सीख लेंगे, राइट, स्मॉल सेंटेंस मेकिंग विच विल बी पार्ट ऑफ योर एवरीडे लर्निंग, तो छोटे छोटे सेंटेंस तो हम यहीं पे सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डे 1 ही आप बोल रहे हो आई एम रीडिंग, ठीक है, तो ये तो हम क्लास में, चलो मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ, वन सेकेंड, फॉर
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ़ आई टेक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लास में वी आर ऑलरेडी गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जैसे आई एम ईटिंग नाउ, यहाँ पे जो है दिस पार्ट, दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू क्रिएट। ये क्लास में ही हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज, यहाँ पर दिस इज समथिंग विच यू विल क्रिएट ऑन योर ओन। ये सारा इतना एक्सरसाइज हमारा क्लास में डेली का हो जाएगा, लाइव सेशन में विल क्रिएट। एंड देन इसके अलावा जो रहेगा, apart from this also I'll give you a lot of assignments, so every day you will make more sentences at home. And then once your 60-day journey is over, आपका पूरा 60 days का पढ़ना हो जाएगा, now this will be your next step, you will be given longer sentences to create at home to practice। पूरे आपको कितना टाइम ले रहा है, yes, फॉर एग्जाम्पल लाइक दीज आर द सेंटेंसेस, आपको इस तरीके के सेंटेंस दिए जाएंगे। क्या लिखा है, वे मीटिंग रूम में नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, हम अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतियाँ तलाश कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इस टाइप के लॉन्गर सेंटेंसेस। पहले 15 दिन आपको क्या कराया जाएगा, लॉन्ग सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं इन इंग्लिश। आई विल गिव यू हिंदी सेंटेंसेस एवरी डे, आई विल गिव you 50 or 35, mostly I'll give you 50 sentences which you will convert, and once you are able to create your sentences, which you will do for sure, then you will for the next 15 days it will be your spoken practice। फिर क्या हो जाएगा, क्लास में हम लोग डेली के we provide some, one second, then we'll start with the spoken practice। like for example look at this, यहाँ पे you will see the phrases, we will start practicing with the help of idioms and phrases। for example now this is the idiom, jump on the background, let the cat out of the bag, hit the sack, है ना। like for example break the ice, ये क्या है, these are the idioms। like for example मैंने बोला है break the ice, I'll explain you what break the ice means, and then you will create your own examples। so spoken practice, this is called as spoken practice। ultimate goal is to speak। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि कोई सब कुछ शांत है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, तो हमें बात की शुरुआत करना है, बातों की शुरुआत। लाइक क्या बोला है, टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन ए टेंस और ऑकवर्ड सिचुएशन। टेंस सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग बिल्कुल नए हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हैं, पीपल आर हेजिटेटिंग टू टॉक टू ईच अदर, और इन अ सिचुएशन लाइक यू नो सब लोग चुप चुप बैठे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। जनरली ऐसा कब होता है, व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, या ऑफिस में नोबडी इज़ यू नो विलिंग टू स्पीक बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न। तो ऐसी सिचुएशन में जो खामोशी को तोड़ने की बात होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक द आइस। ये जो मुहावरे होते हैं ना, लाइक इन हिंदी ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि होता है नाचना आवे आंगन टेढ़ा, है ना, ऊँट के मुंह में जीरा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे मुहावरों से वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस हम लोग ऐसे। और एल्स आई विल ऑल्सो गिव यू सर्टेन टॉपिक्स, डिबेट टॉपिक्स हम करते हैं फिर, डिबेट टॉपिक्स जिसमें क्या होता है, आई विल गिव यू सम, फॉर एग्जांपल एआई इज अ बून और अ बेन। बून और बेन मतलब ये अच्छा है या ख़राब है। नाउ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट इट्स अ बून, बून मतलब आशीर्वाद है, इट्स लाइक अ मिरेकल, एंड बेन मतलब वो बिल्कुल ख़राब है ना, ये अभिशाप है ना। तो आशीर्वाद है, अभिशाप है, लाइक इट्स लाइक one person will talk about the positive aspect and the other person will talk on the negative aspect of this. So this is how I'll give you the topics on an everyday basis where you guys will practice. So remaining 30 days will be your, remaining 50 days or 15 days will be your spoken practice. So altogether this course is 90 days, out of which क्या हो जाएगा, at the end of 90 days 15 दिन आपने यहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस किया, बट आफ्टर 90 डेज यू विल गेट एन एप्लीकेशन, यू विल गेट एन ऐप जो कि आपको डाउनलोड करना है। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड यू विल स्टिल बी इन टच विथ एवरीवन एंड यू कैन प्रैक्टिस हियर ऑन अ डेली basis। So this is how we are going to cover, just give me one more minute, ठीक है ना। कमिंग बैक टू द चार्ट, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी।
ग्रुप डिस्कशंस होंगे, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको आ जाएगा जब आप इतना बोलना शुरू कर दिए। ऑब्वियसली आपने हमारे पहले के भी वैसे देखे ही होंगे, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। अभी सितंबर की जो बैच ख़त्म हुई है उनका आपने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। We are an ISO certified company, ठीक है। We have two companies actually, Saxena Global Essentials, this is an MNC company, we are into imports and exports, ठीक है, ये import export से related company है। And then the second one is SS Academy, under this banner we are learning spoken English and digital marketing, both are ISO certified company as you can see, and it's MSME registered as well, and it is registered under the Startup India initiative, okay। So it's in, and we have the offices in Pune. This is so small background about me. My name is Rajni Saxena, founder of SS Academy and Saxena Global Essentials. What about my certifications, I mean my qualification? I have completed import and export business, IIFT and DGFT. Like this was conducted by IIFT and DGFT, which is Indian Institute of Foreign Trade, and DGFT, Directorate General of Foreign Trade. It was a long program into imports and exports, and this is something which I am practicing. Okay, then we have global collaboration. I have the certification from Harvard University, and then digital marketing certificate from Infosys. I have MBA degree. I have done my MBA with dual specialization. One is into international business and the other one is in human resource. Presently I am pursuing my PhD, and my topic is industrial and organizational psychology. Yes, I have traveled to more than 20 countries. This was related to my first business, Saxena Global Essentials, because we are into imports and exports, as I said, and mostly in the European country. I have traveled to France, Germany, Spain, and all these are European countries, okay। Now certified, yes, I am a certified digital marketing trainer from Skill India. And then yeah, this is okay, this is not so important to be explained. We have two offices, one is in Germany and one is in, recently we have taken an office in US also, but again this is related to our imports and exports, nothing to do with our academics. Spoken English is a different one. Now this is what we have already spoken. हमने देखा है इंग्लिश कैसे है, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, एंड दिस वाज द क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं क्या हमें ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट ग्रामर यू विल क्रिएट रॉन्ग सेंटेंसेस। और कैसे पढ़ना है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। दो पार्ट में पढ़ना है, ग्रामर एंड देन वोकैबुलरी आप धीरे धीरे सीखोगे। ग्रामर का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, 60 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। वोकैबुलरी इज़ अ लॉन्ग जर्नी, आप जितना पढ़ते जाओगे। वोकैबुलरी ऑल टुगेदर वी हैव, वोकैबुलरी में इफ़ आई टेल यू कितने शब्द हैं वोकैब में, okay, I have deleted. All right, vocabulary, grammar and vocabulary altogether it has 1,70,000 words. आप अगर डिक्शनरी देखोगे, एज पर द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एज पर द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, एज पर द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वी हैव दिस मच वर्ड्स, आउट ऑफ विच 1,50,000 इज इन यूज़। बाकी के 20,000 वर्ड्स तो 20 के वर्ड्स कभी यूज़ भी नहीं हुए हैं। नाउ इवन अ गुड क्या बोलेंगे हम, इवन अ गुड एंकर, एक अच्छी न्यूज़ एंकर भी जो है, जो टीवी में भी काम करते हैं, इट इज़ सेड, लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट माई एजम्पशन, आई रेड इट समवेयर, कहा जाता है उनके भी डिक्शनरी में 50 से 70,000 वर्ड्स ही वो लोग होते हैं। दे यूज़ विद द हेल्प ऑफ 50 to 70,000 वर्ड्स। आई मीन लाइक इवन एन एंकर न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ चैनल, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल के एंकर भी 1.5 लाख वर्ड्स नहीं है उन्हें पता। विद द हेल्प ऑफ 50 to 70,000 वर्ड्स यू कैन बी अ गुड, यू कैन बी एन एलोक्वेंट स्पीकर, you can be a good news reader or an English news
anchor. All right, so this is vocabulary is not something like which you will complete in a day. Vocabulary is a long process. इसमें आपको क्या करना है, you start practicing learning 5 new words in a day. ऐसा बोला जाता है कि even if you learn 5 new words in a day and if you keep practicing for the next 1 year, तो भी आपके पास में enough of शब्द जमा हो जाएंगे and you will be a very good speaker. You can be a very good speaker. Okay, and if you do it for 3 years instead of 1 year, if you keep practicing this for 3 years, 365 into 3 into 5 words a day, क्या आ रहा है फिगर लिख दो यहाँ पे, you will be capable or eligible for becoming an English news anchor. ठीक है, इसमें आप इंग्लिश न्यूज़ एंकर भी बन जाओगे इफ़ यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स. इतना इनफ है. ठीक है, यू डोंट हैव टू रीड ऑल 1,70,000 वर्ड्स. नोबडी नोस, किसी ने भी नहीं पढ़े हैं इतने. ठीक है, जिसने डिक्शनरी लिखा है उसी ने पढ़ा है उतने वर्ड्स, उसी को पता है. जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी के सारे शब्द हमें नहीं पता, बट स्टिल वी आर केपेबल, राइट. आई एम स्टिल केपेबल. आई कैन गो टू द सम न्यूज़ एंकर, आई कैन स्टिल होस्ट अ प्रोग्राम. मुझे भी हिंदी के पूरे वर्ड्स नहीं पता. आई इवन डोंट नो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन हिंदी डिक्शनरी, बट इफ़ आई फाइंड इट विल बी मोर देन 1 लाख आई गेस. बट इवन इफ़ आई हैव 1 लाख, मुझे तो आई एम श्योर कि मुझे 1 लाख वर्ड्स भी नहीं पता. इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मी, टॉक अबाउट एनीबडी. आप बोलते हो यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश. इफ़ आई आस्क यू टू राइट अ लेटर, ठीक है, एक अच्छा लेटर लिखो, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट इन गुड हिंदी. हम बोलते हैं ना, अरे इतनी शुद्ध हिंदी तो हमारी भी नहीं है. हमको इतने बड़े बड़े, अभी भी कोई अच्छी बहुत शुद्ध हिंदी में बात कर ले तो हमें समझ में नहीं आती आधी बातें. वी फील लाइक अरे बाप रे ये कौन से शब्द हैं, है ना. तो आदरणीय, ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. आदरणीय हो गया, दीज आर काइंड ऑफ वर्ड्स जो हम यूज़ नहीं करते. दैट्स द रीज़न कोई भी एक लैंग्वेज के इतने शब्द की ज़रूरत नहीं है. वोकैबुलरी इज़ ऑल्सो पार्ट विच यू कीप प्रैक्टिसिंग. ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लर्न. ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का. नाउ चलो, नाउ विल स्टार्ट विद द सेशन. आज हम सबसे पहला समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं. पहले हम टेंसेस से शुरुआत करेंगे. ऑलराइट,